Hello students, welcome to IE. In this video, we are going to discuss about the other properties of the Fourier transform. So far, we have discussed about 5 properties of the Fourier transform. Now we are going for the 6th property. So let us say what is the 6th property? So 6th property means the shifting property. So the 6th one is the shifting property. So this is the shifting property. Now we have already known that if we have a signal in the time domain, Fourier transform gives or convert this signal in the frequency domain denoted by x omega, or you can say x of f. Omega means the angular frequency, f means the linear frequency. So this is the major definition or mathematical definition of the Fourier transform. Now, if we apply the shifting property to the Fourier transform, what will happen? The first thing is that this shifting can be done in two ways. There are two types of shifting. First one is the time domain shifting, time shifting. Second one is the frequency shifting. ये दोनों तरीके का शिफ्टिंग हो सकता है इस फूरियर ट्रांसफॉर्म के लिए, कोई भी सिग्नल के लिए. So let us first talk about this time shifting. So if we denote this as the A number and this is the B number, that means there are two types of shifting. First one is the time shifting, second one is the frequency shifting. So the first one we are going to discuss about the time shifting. So what will be the time shifting? तो टाइम शिफ्टिंग का मतलब क्या है कि टाइम शिफ्टिंग का मतलब होगा कि सपोज इफ वी हैव अ सिग्नल xt, if we have a signal xt, then we know that the Fourier transform of this signal xt will give x of omega. So this is the major definition, mathematical definition, or you can say notational definition of the Fourier transform. Now suppose if we time shift this xt in the time domain, that is x of t minus t0. We have shifted the xt by amount t0. So x of t minus t0, then if we do this Fourier transform, अब ये वाले सिग्नल का अगर Fourier transform करेंगे तो मेरा यहाँ पे Fourier transform क्या होगा? This is given by the time shifting. So now the picture comes like this, that if you have a xt and if you do the time domain shifting by amount of t0, and if we do the Fourier transform of this signal, then what will be the Fourier transform? So उसके लिए क्या होगा कि आपके जो Fourier transform होंगे according to the time shifting, the Fourier transform looks like this: e to the power minus j omega t0. यहाँ पे माइनस मतलब यहाँ पे माइनस, तो e to the power minus j omega t0 into x of omega. x of omega क्या है? ये जो मेरा x of omega था वही वाला x of omega यहाँ पे आएंगे. So this is given by the time shifting. इसका डेरिवेशन आपके लिए जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे आपको अप्लाई करने, कैसे अप्लाई करना है इस चीज को आपको ये जानना जरूरी है. तो ये था मेरे लिए टाइम शिफ्टिंग. नाउ वी विल गो फॉर द फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग. बी नंबर पे मेरा होगा फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग. अब फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग का मतलब क्या होगा? फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग का मतलब है कि सपोज इफ वी हैव अ सिग्नल xt and the Fourier transformation of this signal xt is capital X of omega. Now in this time shifting, what we have done, we have shifted the time domain signal. Now we will shift the frequency domain signal. If we shift the frequency domain signal,
by an amount, let us say omega minus omega 0. If we shift the frequency domain signal, then if we do the inverse Fourier transformation, then what will be the time domain equivalent signal? This is given by the frequency shifting property, and according to the frequency shifting property, the inverse Fourier transformation of this x omega minus omega 0, जिसको मतलब मैंने फ्रीक्वेंसी डोमेन पे ओमेगा 0 शिफ्ट किया है, तो उसका जो टाइम डोमेन सिग्नल होगा दैट विल बी, यहाँ पे माइनस मतलब e टू दी पावर j ओमेगा 0 इंटू t इंटू एक्स ऑफ t, ये वाला. सो दैट मीन्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने माइनस t0 डाला है, तो यहाँ पे माइनस j माइनस साइन e टू दी पावर, यहाँ पे मैंने माइनस ओमेगा 0 डाला है, टाइम डोमेन पे प्लस है. सो नाउ यू कैन सी दैट वी नो दैट ये जो मेरा टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हुआ, ये मेरा फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. सो व्हाट विल बी द कंक्लूजन ऑफ दिस टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी एंड द फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी? कंक्लूजन क्या होगा? अब देखो कि मैंने अभी देखा कि ये जो मेरा x ऑफ ओमेगा है, x ऑफ ओमेगा, we know that this x of omega will have a magnitude part capital X of omega mod and angle of capital X omega. So this gives the amplitude part and this gives the phase value of this capital X omega. Now when I did the time shifting, तो टाइम शिफ्टिंग जब मैंने किया तो फ्रीक्वेंसी डोमेन पे ये वाला जो टर्म है, ये टर्म सिर्फ मल्टीप्लाई हुआ. सो कौन सा टर्म मल्टीप्लाई हुआ? e टू दी पावर माइनस j ओमेगा 0 t0. दैट्स मीन दैट ये जो सिग्नल है, इस सिग्नल का तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? इट विल हैव अ यूनिट मैग्नीट्यूड बिकॉज एक्सपोनेंशियल. सो इसका मैग्नीट्यूड 1, बट इट विल गिव अ फेज. इसका फेज एग्जिस्ट होंगे, इट विल गिव अ फेज बिकॉज इसका फेस क्या है? e टू दी पावर j माइनस j थीटा, थीटा इज ओमेगा t0. यू कैन सी दैट. सो दैट मीन्स इट विल गिव अ फेस. दैट मीन्स ये जो टाइम शिफ्टिंग मैंने किया, सो दैट वी कैन से दैट टाइम शिफ्टिंग will produce only some phase in the frequency domain. In the frequency domain कोई मैग्नीट्यूड का चेंज नहीं होंगे, क्योंकि एक्स ओमेगा जो है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम मैग्नीट्यूड रहेगा, सिर्फ एक फेज इंट्रोड्यूस होगा एंड दैट फेज विल बी गिवन बाय e टू दी पावर माइनस j ओमेगा t0, मतलब ओमेगा t0. अब आइए फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग पे. सो दिस इज द वन ऑफ द कंक्लूजन दैट टाइम शिफ्टिंग जब हम लोग करेंगे तो फ्रीक्वेंसी डोमेन पे सिर्फ एक फेज का इंट्रोडक्शन होगा, कोई मैग्नीट्यूड का इंट्रोडक्शन यहाँ पे नहीं होंगे. Similarly, if we talk about the frequency shifting, then the frequency shifting value you can see that in this frequency shifting what happens? xt x omega, तो इसका एक मैग्नीट्यूड वाला पार्ट होंगे और एक फेज वाला पार्ट होगा. ओके, सो टाइम डोमेन पे कौन सा टर्म इंट्रोड्यूस हुआ है? e टू दी पावर j ओमेगा 0 t. So that means we can say that in the frequency domain के बाद में अगर बोलूंगा तो मैं बोल सकता हूं कि in frequency shifting what happens? Frequency shifting में in the time domain what happens? It will have a फ्रीक्वेंसी एनहांसिंग पार्ट. ये क्या है? एक फ्रीक्वेंसी एनहांसिंग पार्ट है. सो फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग में इन द टाइम डोमेन it will introduce a frequency enhancing part. और फ्रीक्वेंसी एनहांसिंग पार्ट कौन सा है? फ्रीक्वेंसी एनहांसिंग पार्ट आपका ये वाला है. But in the time shifting you are getting a phase introduction
और यहाँ पे क्या होगा, एक फ्रीक्वेंसी एनहेंसिंग पार्ट आएगा। सो ये था आपके लिए टाइम शिफ्टिंग एंड फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग। नाउ we'll go for some numerical on this time shifting and frequency shifting. Now let us take some examples on the time shifting and the frequency shifting. So the first example that we are going to take is that this example. So let us take the example number 1. So in this example number 1, let us say we are going to find the Fourier transform of a signal in the time domain given by del of t minus t0. ये वाले सिग्नल का मुझे फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालने होंगे. सो लेट अस से हाउ टू फाइंड दिस. नाउ अब देखो, डेल ऑफ t माइनस t0, सपोज आपका नोन सिग्नल क्या है, पहले आपको नोन सिग्नल ढूंढना होगा, कौन से सिग्नल आपका नोन है. सो नोन सिग्नल जो आपके हैं, आई एम राइटिंग हियर कि नोन सिग्नल. सो नोन सिग्नल क्या होगा, डेल टी. अब ये जो डेल टी है, इस डेल टी को मैं अगर फूरियर ट्रांसफॉर्म करता हूं तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है 1. यू नो दैट द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ अ यूनिट इंपल्स फंक्शन इज 1. नाउ हमने क्या किया कि ये वाले सिग्नल को डेल ऑफ t माइनस t0, यहां पे डेल ऑफ t माइनस t0 किया, मतलब टाइम शिफ्टिंग किए मैंने. यहां पे कौन सा वाला प्रॉपर्टी आएगा, यहां पे जो प्रॉपर्टी आएंगे दैट प्रॉपर्टी इज नथिंग बट द टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. सो वी हैव गॉट द टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. अब टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, इसको टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करते हुए इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे. सो इसका जो फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, व्हाट वी नो, यहां पे होता है e टू द पावर, यहां पे माइनस साइन, तो e टू द पावर माइनस साइन j ओमेगा t0, तो j ओमेगा t0, उसके साथ क्या था, कैपिटल x ऑफ ओमेगा, और कैपिटल x ऑफ ओमेगा आपके लिए था कैपिटल x ऑफ ओमेगा, दैट इज 1. सो दैट मीन्स दिस वन. So we can see that the Fourier transformation of del of t minus t0 is e to the power minus j omega t0. मैग्नीट्यूड का कोई चेंज नहीं हुआ, सिर्फ आपका फेज इंट्रोडक्शन हुआ. कितना फेज इंट्रोडक्शन हुआ, e to the power minus j omega t0, मतलब j थीटा, तो यहां पे आएंगे माइनस ओमेगा t0 एंगल, फेज एंगल इंट्रोड्यूस हुआ. सो ये था मेरा पहला एग्जांपल. नाउ वी विल गो फॉर द सेकंड एग्जांपल. So let us go for the second example. So according to the second example, क्या होगा कि let us take the second example, and in the second example you can see that let us take xt is equals to e to the power minus 2 of t minus 2 into u of t minus 2, ये वाला. So ये है मेरा xt. Now let us say what will be the Fourier transform of this xt. सो ये जो xt गिवन है, इसके लिए आपको पहले नॉन सिग्नल ढूंढना होगा. अब नॉन सिग्नल क्या है आपके पास, नॉन सिग्नल. नॉन सिग्नल होगा e टू द पावर माइनस 2t इंटू ut. सो दिस इज द नॉन सिग्नल, यू कैन सी. नाउ इस नॉन सिग्नल के फूरियर ट्रांसफॉर्म आपको मालूम होना चाहिए. सो इफ यू
remember the Fourier transform or recall the Fourier transform of this e to the power minus 2t into ut, then you can say that e to the power minus 2t into ut, इसका जो Fourier transform था, if you remember the Fourier transform of this signal xt was 1 by, यहाँ पे क्या है, e to the power minus at, और जब माइनस 80 होता है तो वहां पे क्या होता है, a प्लस, a मतलब यहाँ पे 2, a प्लस j ओमेगा, दैट इज 2 प्लस j ओमेगा. सो यू हैव गॉट द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ योर नोन सिग्नल. नाउ आपको यहाँ पे आना है, तो ये वाले सिग्नल पे आने के लिए आपको क्या करना होगा, टाइम शिफ्टिंग करने होंगे, एंड द टाइम शिफ्टिंग अमाउंट क्या था, -2. सो e टू द पावर माइनस, यहाँ पे t -2 डालने होंगे. सो यू हैव टू डू द टाइम शिफ्टिंग, यहां पे टाइम शिफ्टिंग डालना होंगे. कितने टाइम शिफ्टिंग, e टू दी पावर -2 t -2 इंटू u t -2, ये वाला. तो इसको फूरियर ट्रांसफॉर्म डालिए. इसको फूरियर ट्रांसफॉर्म डालने के लिए आपको क्या चाहिए, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करना होगा. यू हैव टू यूज द टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. So if you want to use the time shifting property, then what will happen? Just you know that जब भी आपको टाइम शिफ्टिंग होता है तो यहाँ पे क्या है, t -2. सो यहाँ पे माइनस मतलब यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस मतलब यहाँ पे माइनस. सो e टू दी पावर -j ओमेगा, t0 मतलब 2 इनटू यहाँ पे पहला वाला क्या था, x ओमेगा, ये वाला 2 प्लस j ओमेगा. So this was the question xt का Fourier transformation. So in this way you have to apply the time domain signal or time shifting property for finding the time shifted Fourier transformation of any time domain signal. Now let us take the third example of this property. So third example क्या है? So let us say how to find the Fourier transformation xt of cos ओमेगा 0t. इस cos ओमेगा 0t का फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होना चाहिए. अब देखो, इस cos ओमेगा 0t को अगर मुझे फूरियर ट्रांसफॉर्म करना है, आई कैन अप्लाई और आई कैन डायरेक्टली फाइंड दिस फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस cos ओमेगा 0t डायरेक्टली फ्रॉम द फूरियर ट्रांसफॉर्म, जैसा वो फॉर्मूला था xt के लिए, x ओमेगा के लिए. अब मैं उस फॉर्मूले से नहीं जाके हम लोग बहुत ही आसान तरीके से इस cos ओमेगा 0t का फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे. अब कैसे, वी हैव टू यूज द टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी और ऑल दिस प्रॉपर्टीज जो हम लोग जानते हैं. सो पहला चीज, आपको ये प्रॉपर्टीज के बारे में अच्छी तरीके से नॉलेज होना चाहिए. नाउ ये जो xt है, इस xt cos ओमेगा 0t है. तो cos ओमेगा 0 जो t होता है, cos ओमेगा 0t, ये जो cos ओमेगा 0t है, इस cos ओमेगा 0t को आप लोग एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं. cos थीटा इक्वल्स टू e टू दी पावर j थीटा प्लस e टू दी पावर माइनस j थीटा डिवाइडेड बाय 2. बट यहाँ पे थीटा क्या है, ओमेगा 0t. सो दैट मीन्स you can write it as e to the power j omega 0t plus e to the power minus j omega 0t divided by 2. ये वाला. So that means this cos can be formed using e to the power j omega 0t plus e to the power minus j omega 0t. Now, if you remember that e to the power j omega 0t, ये वाला पहला वाला टर्म, सो e टू दी पावर j ओमेगा 0t, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन आपको चाहिए. नेक्स्ट e टू दी पावर माइनस j ओमेगा 0t, इसके फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन भी आपको चाहिए, क्योंकि आप सुपरपोजिशन थ्योरम यूज करने वाले हैं. सो सुपरपोजिशन थ्योरम से इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, एंड अकॉर्डिंग टू द फूरियर superposition principle we will write the cos omega 0t Fourier transformation. So what is the Fourier transformation of e to the power j omega 0t? It is nothing but 2 pi del omega minus omega 0. Similarly I can also write the e to the power minus j omega 0t, ये होंगे 2 pi del omega plus omega 0.
ये हुआ आपका दो फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ we'll use the superposition principle or the linearity property. Superposition principle, or you can say we will use the linearity property. अब linearity property आपको यूज करना है। So linearity property जब यूज करेंगे तो क्या लिख सकता हूं मैं, यहां पे जो cos ओमेगा 0t है इसका फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन जो होने वाला है क्या होगा, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन इसके फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइडेड बाय 2। सो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आपके पास होगा पाई डेल ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा 0 प्लस पाई डेल ओमेगा प्लस ओमेगा 0, ये वाला आएंगे। सो नाउ यू कैन सी वी हैव फाउंड द फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ the cos omega 0t with a very easy method. Now ये क्या है, this is the Fourier transformation of the cos omega 0t. अब cos omega 0t का जो Fourier transformation है that means this is the x of omega. अब इस x of omega का एक एम्पलीट्यूड वाला पोर्शन रहेगा, यहाँ पे एक फेज वाला पोर्शन हो जाएंगे। सो नाउ इफ यू ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, अब फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम आप ड्रॉ करने वाले हो तो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम क्या होगा, सो लेट अस से आई एम प्लॉटिंग x of omega on the omega scale. So if I want to plot the x of omega at omega scale, so say let us say this is the omega equals to 0 point. So एक सैंपल आपका होगा ओमेगा प्लस ओमेगा 0 पे, एक होगा ओमेगा माइनस ओमेगा 0 पे। सो लेट अस से यहाँ पे अगर ओमेगा माइनस ओमेगा 0 है तो आप लिख सकते हैं, देखिए सो सपोज दिस इज ओमेगा स्केल, सो ये अगर मेरा 0 फ्रीक्वेंसी होगा तो यहाँ पे मैं 0 डाल सकता हूँ, सो दिस इज 0। एक फ्रीक्वेंसी पॉइंट होंगे प्लस ओमेगा 0 पे तो यहाँ पे मेरा प्लस ओमेगा 0, एक फ्रीक्वेंसी पॉइंट होगा माइनस ओमेगा 0 पे, और सभी जगह पे आपका एक इंपल्स फंक्शन रहेंगे। सो लेट अस ड्रॉ द इंपल्स फंक्शन, सो दिस इज द इंपल्स फंक्शन। और इस इंपल्स फंक्शन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, यहां पे देखिए मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, सो इसका मैग्नीट्यूड होंगे पाई, इसका मैग्नीट्यूड होगा पाई। ये क्या है, दिस इज द एक्स ओमेगा प्लॉट, एक्स ओमेगा का प्लॉट मैंने किया, मॉड ऑफ एक्स ओमेगा, मॉड ऑफ एक्स ओमेगा का प्लॉट किया, दैट मींस देयर आर टू इंपल्सेस। सो ये जो मेरा cos ओमेगा t है, इस cos ओमेगा t के अंदर इट इज हैविंग टू impulses in the frequency spectrum. frequency spectrum के अंदर आपका दो इंपल्स होगा at omega 0 and minus omega 0. So this is all about the numericals on the time shifting property and the frequency shifting property. Now let's come to the next property of the Fourier transformation, that is the differentiation property. So we are going to say the seventh property. We have done the sixth property. The seventh property is the differentiation property. So what will be the differentiation property? So let us understand what is differentiation property. So previously what we have seen, that if we have a time domain signal xt, and if we do the Fourier transformation ft on this xt, we will get x omega. We are assuming this. Now according to the differentiation property, if we do the differentiation in the time domain, that is dxt of dt. Now हमने क्या किया, यहां से इसको डिफरेंशिएट किया d by dt. So we have done the differentiation in the time domain. Now if we do the Fourier transformation, so what will be the Fourier transformation? This is one part which is called the time differentiation, and the second part, that if we do the Fourier transformation, or if we do the differentiation of this x omega, that is dx omega by d omega, इसका अगर मैं Fourier
करूंगा, सो इफ आई डू द इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन, so what will be the time domain part? So this belongs to the frequency domain differentiation and this belongs to the time domain differentiation. So according to the time domain differentiation property, we know that this one will be j omega x omega. मतलब हमने एक बार डिफरेंशिएशन किया तो x ओमेगा j ओमेगा. Now if I do the differentiation second order, that is d2 xt by dt2, मतलब we have done the differentiation two time differentiation, then what will happen? It will be j omega square x of omega. That means in this way, if we do the nth differentiation, that is dn xt by dtn, then the Fourier transformation of this signal will be j omega to the power n x omega, ये वाला. So ये हुआ मेरा टाइम डोमेन डिफरेंशिएशन. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द फ्रीक्वेंसी डोमेन डिफरेंशिएशन. सो फ्रीक्वेंसी डोमेन जो डिफरेंशिएशन है, मेरे पास एक्स ओमेगा थे, उस एक्स ओमेगा को मैंने फ्रीक्वेंसी डोमेन पे डिफरेंशिएट किया, दैट इज डी एक्स ओमेगा बाई डी ओमेगा. नाउ इफ आई डू द इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन व्हाट विल बी द टाइम डोमेन सिग्नल? द टाइम डोमेन सिग्नल इज j minus j xt into t, ये वाला. So that means if I do the differentiation in the frequency domain, the inverse Fourier transformation, if I do the inverse Fourier transformation, then I will get minus j into t into xt. So in this way, this is the frequency domain differentiation, this one is the time domain differentiation. Now let us take some example to understand deeply about the differentiation. So the first example that we are going to take, that example number 1. So in the example number 1, let us say we are going to find the Fourier transformation of SGNT signum function. सिग्नम फंक्शन के फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन हमने किया था, बट वी हैव डन द फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सिग्नम टी और सिग्नम फंक्शन यूजिंग सम बेसिक इक्वेशंस. नाउ वी विल यूज द डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी टू फाइंड द फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस सिग्नम फंक्शन. सो हाउ टू डू दैट? सो इन दैट केस व्हाट वी विल डू, वी नो दैट मेरे पास जो सिग्नम फंक्शन है, सो लेट अस से दैट xt is equals to signum function of t. So this signum function of t can be written as 2 into ut minus 1. इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं. Now differentiating on both side, दोनों साइड में मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं. So दोनों साइड में अगर डिफरेंशिएट करूंगा तो यहां पे क्या होगा, ये मेरा xt है. सो xt को डिफरेंशिएट करने से क्या होगा, डी xt बाई dt होंगे. अब ये वाला इक्वेशन 2 इंटू डी ऑफ ut डिवाइडेड बाई dt, और यहां पे तो जीरो आएंगे क्योंकि 1 है. सो नाउ यू कैन सी dut ऑफ dt. अब dut ऑफ dt का मतलब क्या होता है? dut ऑफ dt का मतलब होता है कि del t, बिकॉज द डिफरेंशिएशन of the unit step function is always a unit impulse function. So यहाँ पे unit impulse function मैंने डाला. So now you can see if we apply the Fourier transform right now. So let us apply Fourier transform properties. कौन से वाले properties? dxt of dt मतलब ये वाला, that is j omega x omega. सो यहां पे मैं लिख सकता हूं j ओमेगा कैपिटल ऑफ x ओमेगा. नाउ इसका अगर फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन मुझे डालना है, सो दिस कैन बी रिटन एज, यहां पे आइए क्या है, डेल टी.
अब डेल टी का फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, आपको मालूम है डेल टी का फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन इज 1, सो ओनली 2। सो यहां से आपका एक्स ओमेगा निकल जाएंगे, सो 2/j ओमेगा। सो यहां पे आप देख सकते हैं दिस इज द फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब xt क्या था, ये वाला xt, तो xt का फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन मतलब यहां पे x ओमेगा। सो इसी x ओमेगा का वैल्यू यहां पे है। सो दैट मीन्स वी हैव फाउंड द फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस सिग्नम फंक्शन। यू हैव, इफ यू रिकॉल द सिग्नम फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म था 2/j ओमेगा, यहां पे भी 2/j ओमेगा है। So this is how we can use the differentiation property to find some numericals. Now we'll go for the next property, that is the integration property. Now let us see the integration property, that is the eighth property. That is the integration property. So in the integration property, let us assume first that if we have a signal xt which is in a time domain. Now if we do the Fourier transformation ft of this signal, let us say it will be x omega. Now if we go for the integration in the time domain, अगर time domain पे मुझे अभी integration करना है, so I can write that integration of this signal, that is integration of xt. So let us take a dummy variable x tau in place of t, that is d tau, and we are integrating from minus infinite to t. So मैंने क्या किया, टाइम डोमेन का जो सिग्नल है उस टाइम डोमेन सिग्नल को मैंने फूरियर ट्रांसफॉर्म करने के लिए यहाँ पे एक्स ओमेगा था, अभी इस टाइम डोमेन सिग्नल को मैंने इंटीग्रेशन किया ओवर द इंटीग्रल पीरियड माइनस इन्फिनाइट टू टी और एक डमी वेरिएबल आया। अब इसका अगर मैं फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा तो फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होंगे, ये मेरा इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी है। So according to the integration property, the Fourier transformation of this equation is of two cases, that is first one it will be x omega by j omega. कब होगा, when the value of capital X at omega equals to 0 is 0, and the second one is it can be capital X omega plus j omega plus pi into capital x0 into del omega. ये कब होंगे, जब when x of 0 is not equals to 0. That means इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी में आपका दो आंसर हो सकता है, इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी में आपका दो आंसर हो सकता है। पहला वाला आंसर क्या हुआ है, पहला वाला आंसर है कि जब मेरा ये जो x ओमेगा है, इस x ओमेगा का वैल्यू एट ओमेगा इक्वल्स टू 0 पे 0 होता है, तब मेरा अकॉर्डिंग टू द इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी इट विल बी x ओमेगा बाय j ओमेगा, अदरवाइज इट विल बी दिस वन. So now we will use this integration property in our equation like this. अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं. So let us say that क्वेश्चन था, the question is find the Fourier transform of integration minus infinite to t sin 4 pi tau divided by pi into tau
इंटू डी टाउ, ये। और मोस्ट इंटरेस्टिंग इज दैट इट वाज अ मैकआउट एग्जामिनेशन। ये मैकआउट एग्जामिनेशन का ही क्वेश्चन है कि फाइंड द फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस। नाउ इफ यू लुक एट दिस सिग्नल, इस सिग्नल में आपका पहला चीज क्या है, आपको नॉन सिग्नल ढूंढना है जो रेफरेंस सिग्नल होते हैं। अब रेफरेंस सिग्नल आपके पास क्या होगा, इसके लिए आपको एक रेफरेंस सिग्नल चाहिए जो इसके नजदीक होंगे। तो रेफरेंस सिग्नल जो होता है इस यहां पे आप देखिए तो साइन 4 पाई इंटू टी डिवाइडेड बाई पाई टी, इफ यू रिमेंबर। सो ये था मेरा रेफरेंस सिग्नल। सो ये जो सिग्नल है, इस सिग्नल का अगर मैं फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन डालूंगा, इफ आई डू द फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन, इट विल बी रेक्टेंगुलर ऑफ ओमेगा बाई 8 पाई। इट विल बी रेक्टेंगुलर ऑफ ओमेगा बाई 8 पाई, ऐसा आता है। सो ये जो सिग्नल है, इस सिग्नल को इफ यू ड्रॉ द सिग्नल इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन, ये मेरा ओमेगा। अब इसको अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो ये मेरा एक्स ओमेगा, जो मेरा ये वाला है रेक्टेंगुलर ओमेगा बाई 8 पाई, इट इज अ रेक्टेंगुलर फंक्शन। सो दैट मीन्स द फंक्शन विल लुक लाइक दिस। इसका एम्पलीट्यूड होगा 1, यहाँ पे होंगे आपका 4 पाई, ये मेरा 0, ये मेरा -4 पाई। सो दिस इज द graph of this rectangular function. Now you have to do this one. That means we have to integrate this signal माइनस इन्फानाइट से लेकर t तक, और यहां पे सिग्नल है आपका 4 पाई, t के प्लेस में टाउ आ जाएंगे और यहां पे होगा डी टाउ। अब इसको इंटीग्रेशन करना है। सो अब इसको मुझे फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन करना है। I will use this property. So अब देखो यहां पे प्रॉपर्टी में क्या है कि x जीरो का वैल्यू, कैपिटल X एट ओमेगा जीरो का वैल्यू 0 अगर होगा तो ये वाले आएंगे, एंड इफ द वैल्यू ऑफ x 0, कैपिटल X 0 इज नॉट इक्वल टू 0, देन दिस वन। नाउ अब आइए x ओमेगा पे। सो x ओमेगा में ओमेगा इक्वल्स टू 0 पे वैल्यू कितना है 1, सो दैट मीन्स वी विल यूज दिस वन, will not use this one। ये कब होगा, जब x of 0 का वैल्यू 0, बट यहाँ पे कैपिटल X of 0 का वैल्यू 1 है क्योंकि रेक्टेंगुलर फंक्शन। सो आई हैव टू यूज दिस। सो दैट मीन्स x ओमेगा डिवाइडेड बाय j ओमेगा। x ओमेगा क्या है, ये वाला। सो आई कैन राइट रेक्टेंगुलर ओमेगा बाय 8 पाई डिवाइडेड बाय j ओमेगा प्लस यहाँ पे पाई, यहाँ पे पाई। अब x ऑफ 0 का वैल्यू क्या है 1, सो दिस इज नथिंग बट कैपिटल X ऑफ 0। सो यहाँ पे 1, उसके साथ डेल ओमेगा, उसके साथ डेल ओमेगा। सो दैट मीन्स आई कैन राइट रेक्टेंगुलर ओमेगा बाय 8 पाई प्लस पाई इनटू डेल ओमेगा। सो दिस विल बी द फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस सिग्नल। ये जो सिग्नल गिवन है, इस वाले सिग्नल का मेरा फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे j ओमेगा आएंगे। सो दिस विल गिव अस द फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन। सो ये हमारा फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन है ऑफ दिस सिग्नल। सो इन दिस वे वी कैन यूज द इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी टू फाइंड द फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइम डोमेन सिग्नल इंटीग्रेशन। सो नाउ वी विल गो फॉर द नेक्स्ट। Now let us go for the next property, that is the convolution property. So what is convolution property? So this is the 9th property, that is the convolution property. अब ये convolution वाला property क्या है? So convolution property का मतलब है कि you know what is convolution? We also know that what is convolution. Convolution का मतलब क्या है कि suppose if we have a signal xt, एक सिग्नल है आपके पास xt। अब इस xt सिग्नल का अगर मैं फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन डालता हूं, लेट अस से फूरियर ट्रांसफॉर्म। सो इफ वी डू द फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस सिग्नल, लेट अस एज्यूम दैट द फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस सिग्नल, सपोज दिस इज x1t, तो इसके लिए भी x1 ओमेगा। नाउ लेट अस टेक अनदर वन सिग्नल x2t। अब इस x2t सिग्नल का अगर मैं फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन डालूंगा, लेट अस एज्यूम दैट इट विल बी x2 ऑफ ओमेगा।
ये x2 ऑफ ओमेगा होंगे। ये आपके पास नोन है, ये आपके पास नोन है। नाउ इफ वी डू द कन्वोल्यूशन ऑफ दिस टू सिग्नल x1t कन्वोल्यूशन साइन x2t, और इसका अगर मैं फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन डालूंगा, सो व्हाट विल बी द फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द कन्वोल्यूशन ऑफ x1t एंड x2t। सो उसके लिए अकॉर्डिंग टू द फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन convolution property, the Fourier transform will be x1 omega multiplied by x2 omega। x1 ओमेगा और x2 ओमेगा का दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा आपका ये कॉन्वोल्यूशन। सो दिस इज द कॉन्वोल्यूशन दैट इज डन इन द टाइम डोमेन। टाइम डोमेन पे आप कॉन्वोल्यूशन कीजिए और आपका जो फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल है उस फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कीजिए, आपका फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। नाउ इफ वी डू द फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यूजिंग द कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन, कैसे? अब देखो, सपोज आपके पास एक सिग्नल है xt एंड द फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस सिग्नल सपोज कैपिटल X ऑफ ओमेगा। Let us take another one time domain signal ht and the Fourier transformation is capital H of omega. Now if I do the convolution in the frequency domain, that is capital X omega convolution capital H of omega, ये अगर मेरा कॉन्वोल्यूशन है तो अब देखिए यहां पे मैंने टाइम डोमेन पे कॉन्वोल्यूट किया था, ये मेरा फ्रीक्वेंसी डोमेन पे कॉन्वोल्यूशन है, तो इसका जो इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो क्या होंगे? सो व्हाट विल बी द इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर दिस कॉन्वोल्यूशन इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन? इसके लिए होगा यहां पे एक 1/2 पाई आ जाएगा और यहां पे होंगे आपका xt into ht। दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी डोमेन पे कॉन्वोल्यूशन के लिए सिर्फ यहाँ पे 1/2 पाई xt इंटू ht आएगा, टाइम डोमेन पे कॉन्वोल्यूशन के लिए आपका ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो नाउ लेट अस, ये था मेरा कॉन्वोल्यूशन इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन एंड टाइम डोमेन। सो दिस वाज योर कॉन्वोल्यूशन इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन एंड टाइम डोमेन। तो टाइम डोमेन पे क्या हुआ, ये मेरा टाइम डोमेन सिग्नल है, दिस इज द फ्रीक्वेंसी or convolution in the time domain transformation, and this is the Fourier transformation property for the frequency convolution. Now let us go for the examples to understand this convolution property. So the first example that we are going to take here, question number 1, using this property, that find the Fourier transformation, find the Fourier transformation of e to the power minus at into u of t convolution of e to the power minus at into u of t, ये वाला। तो इसका मुझे फूरियर ट्रांसफॉर्म चाहिए, तो इसको फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालने के लिए यू हैव टू टेक द इंडिविजुअल सिग्नल्स, यू हैव टू टेक द इंडिविजुअल सिग्नल्स। तो इंडिविजुअल सिग्नल्स के बारे में यहाँ पे बात करना होगा, क्योंकि आपको फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन करना है एक e टू दी पावर माइनस at ut इंटू कॉन्वोल्यूशन ऑफ e टू दी पावर माइनस at इंटू ut। अब देखो, ये जो मेरा पहला वाला सिग्नल है e टू दी पावर माइनस at इंटू u ऑफ t, इसका अगर मैं फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन करता हूँ, सो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? ये आपका नॉन सिग्नल है, यहाँ पे e टू दी पावर माइनस at है, सो मतलब यहाँ पे क्या होगा 1/a प्लस j ओमेगा। सिमिलरली e टू दी पावर माइनस at जो है ये भी माइनस at सेम सिग्नल है, यहाँ पे भी सेम सिग्नल, यहाँ पे भी सेम सिग्नल। अब देखो मुझे फूरियर ट्रांसफॉर्म करना है इसका, सो अकॉर्डिंग टू द फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी, इफ वी कन्वोल्यूट टू सिग्नल्स, सेम सिग्नल है आपके पास कॉन्वोल्यूशन में, तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? ये दोनों x ओमेगा और x2 ओमेगा जो है उसका मल्टीप्लीकेशन,
सो यहाँ पे होंगे a प्लस जे ओमेगा इंटू a प्लस जे ओमेगा। सो ये होगा आपका फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर दिस सिग्नल। इसका कन्वोल्यूशन किया टाइम डोमेन पे और मैंने यहाँ पे फूरियर ट्रांसफॉर्म किए। तो इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका क्या आएंगे 1/a प्लस जे ओमेगा होल स्क्वायर। So the Fourier transformation of this signal will be this one. So in this way we can define different properties of the Fourier transformation and we can use these properties to do the numericals in the questions. So hopefully you have understood the concepts and thank you very much for watching the video.